Hello students, I welcome you in this e-class on the topic metal ligand bonding in transition metal complexes. This is the second chapter of your paper first. So, first I would like to give you an introduction to this chapter. There has been much work done in attempting to formulate theories to describe the bonding in coordination compound and to rationalize and predict their properties. पास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को रेशनलाइज किया जा सके, उनकी तर्कसंगत व्याख्या की जा सके. ठीक है. अर्लियर works remained unsuccessful because explanation of bonding in the complex compound was based on valence concept. वैलेंस कंसेप्ट पर बेस होने की वजह से जो आरंभिक प्रयास रहे वह अनसक्सेसफुल रहे. The first successful attempt was made by Werner. The things became easier after electronic theory of valence was developed. ठीक है. So the concept of coordinate bond was given quantum mechanical interpretation, and the first success along these lines was the valence bond theory, which was widely accepted and acclaimed world over in the 1930s and the following years. तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिद्धांत था उसको क्वांटम मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन उसका किया गया और प्रथम प्रयासों में जो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकतापन सिद्धांत जो था उसको 30s में और बाद के आने वाले सालों में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया. In the 50s and the 60s, the crystal field theory and its modification, which are generally known under the label ligand field theory, gained prominence and in turn gradually gave way to the molecular orbital theory. 50s and 60s में जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और जिसको हम लिगेंड फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, इट गेन प्रोमिनेंस और इसी से जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक रास्ता मिला. Now, although both the valence bond theory and the crystal field theory, they have been largely displaced as working models for the practicing inorganic chemist, even though they continue to contribute to current discussion of coordination compounds. ठीक है. तो दोनों ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अब बहुत सीमित उपयोग होने लगा है. फिर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को समझाने के लिए अभी भी इन थ्योरीज को काफ़ी काम में लिया जाता है. सो नाउ वी कम टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज द वेव मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट का जो है यह एक तरह का वेव मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन है. As we have studied in the previous classes, valence bond theory was initially developed for the interpretation of simplest molecule hydrogen, and it was the first theory to interpret stability of hydrogen-hydrogen bond in terms of fall in energy at the particular distance, which we call bond distance between the two hydrogen atoms. ठीक है ना. तो आरंभ में तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का उपयोग जो है बहुत सिंपल मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसकी व्याख्या के लिए किया गया था. अब आपको पता है कि दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो सिस्टम में एनर्जी में कमी आती है उसके माध्यम से एच बॉन्ड की स्टेबिलिटी को इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सहायता से समझाया जा सका. It was then later on extended to the various polyatomic molecules. बाद में polyatomic molecules की bonding को भी इसकी सहायता से explain किया गया. The idea advanced by N.V. Sidgwick in 1927 that a coordinate bond is a covalent bond formed by the donation of a lone pair of electron from the donor atom of the ligand to the central metal atom was extended by Pauling to coordination compound. जो सिजविक ने 1927 में विचार प्रस्तुत किया था कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी क्या है, वह एक
जो है वैलेंस बॉन्ड ही है, जो कि जिसमें कि डोनर एटम जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो एक्सेप्टर एटम है, मेटल एक्सेप्टर एटम, उसको डोनेट कर देता है। ठीक है, तो in this way, Pauling accounted for the bonding of several ligands, the number of which generally far exceeded the common valence of the metal. देखिए, पॉलिंग ने जो है बाद में इस कंसेप्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे लागू करते हुए सुझाव दिया कि इन कंपाउंड्स में, इन कॉम्प्लेक्सेस में प्रत्येक लिगेंड जो है अपने एक एटम के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, और जिसको एक्सेप्ट करने के लिए सेंट्रल मेटल जो कैटायन है या एटम है, उसके पास में एक रिक्त कक्षक उपलब्ध होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार पॉलिंग ये समझा सके कि एक मेटल एटम की जो जो कॉमन वैलेंसी है, ये कम होने के पश्चात भी ये बहुत सारे लिगेंड के साथ बंध बनाते हुए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। So the central ideas of valence bond theory as applied to transition metal complexes can be described by the following hypothetical sequence for the formation of coordination compounds. तो क्या पहला तो यही है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है या आयन है, इट मेक्स अवेलेबल as many as atomic orbital as the number of ligand called coordination number of the metal. कि जो सेंट्रल मेटल एटम या कैटायन है, उसके द्वारा लिगेंड की कुल संख्या के जितने रिक्त एटॉमिक ऑर्बिटल उपलब्ध कराए जाते हैं, और जिसको हम जो धातु का, मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, जनरली द ऑर्बिटल्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर एम्प्टी, but the electrons from the required n-1d orbitals, they are transferred to the other d orbitals of the same or higher energy. ठीक है ना। तो अगर हम धातु के बाह्यतम कक्ष को n के द्वारा हम एग्जिबिट करें, तो बंधन में भाग लेने वाले कक्षक जो हैं वह ns, np या nd, n-1d होंगे। तो हम जानते हैं कि जनरली जो बाह्यतम कक्षक है, उसके बाह्यतम कोश के कक्षक रिक्त होते हैं, लेकिन n-1d ऑर्बिटल्स को रिक्त कराने के लिए इलेक्ट्रॉन की इन्हीं ऑर्बिटल्स में एक तरह से रीअरेंजमेंट कर दिया जाता है, या इन्हें हायर एनर्जी लेवल के n+1s या nd कक्षकों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकंड, that these vacant atomic orbitals hybridize to form a new set of equivalent bonding orbital having definite directional characteristics. The most commonly encountered hybridization in the complexes are, D2sp3, dsp3, dsp2, besides sp, sp2 and sp3 hybridization. ये आप जो है फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। आपको पता है कि जितने भी रिक्त कक्षक हैं वह हाइब्रिडाइज होके बंदी कक्षकों का एक नए समूह का निर्माण करते हैं, जिनकी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और आपको पता है ही कि जो ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं वह D2sp3, dsp3 या dsp2, sp3, sp2 एंड sp ऑर्बिटल्स होते हैं। The vacant hybrid orbital of the metals, they overlap with the filled orbital of the donor groups or ligands to form sigma bond, which are Sedgwick's coordinate covalent bond. ठीक है ना। तो आपको पता है ही कि जो धातु के जो रिक्त हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और लिगेंड के जो डोनर एटम हैं, है ना, लिगेंड के डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर से भरे हुए जो ऑर्बिटल्स हैं, उनके ओवरलैपिंग से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और कॉम्प्लेक्सेस में ये सिग्मा बॉन्ड ही जो हैं वह सिज्विक के द्वारा सजेस्टेड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, जिनके निर्माण की प्रक्रिया के कारण उनमें अत्यधिक जो है पोलराइजेशन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, पोलैरिटी उनमें इट हैज़ टू बी देयर। In case the ligands have pi bonding orbitals also, अगर लिगेंड के पास pi bonding orbital हैं, तो वे
जो सुटेबल मेटल ऑर्बिटल हैं उनसे ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड फॉर्म का निर्माण होता है. द पाई बॉन्ड सो फॉर्म दे रिमूव द एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज which accumulates on the central metal ion due to donation of lone pair of electrons by the ligands during the formation of sigma bond. आपको पता है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि लिगेंड जो है वह सेंट्रल मेटल कैटायन को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो मेटल कैटायन पे जो है अब नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो उससे तो सिस्टम जो है बड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसको डीलोकलाइज करना पड़ेगा. तो नाउ जो है दिस electron pair or negative charge which has accumulated on the central metal cation is now back donated to the empty orbitals of antibonding orbitals of the ligand और पाई बंध का निर्माण हो जाता है. तो इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इज अटेन्ड एंड द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज स्ट्रेंथन्ड. ठीक है ना. तो जो है कॉम्प्लेक्स जो है वह स्थायित्व को प्राप्त होता है. अब वी कम टू द सक्सेस कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या सफलता थी. इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग वेरियस फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. इट इज़ very well explains the ability of transition metals to bind many more ligands than its normal valence exhibited in common inorganic compounds. तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अनेक पहलुओं की व्याख्या करने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इट हैज़ बीन सक्सेसफुल. इसकी सहायता से हम भली प्रकार समझा सकते हैं कि जो नॉर्मल जो जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें तो मेटल आइटम जो है वह अपनी नॉर्मल वैलेंस जो भी उसकी है वह प्रदर्शित करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह किस प्रकार अपनी वैलेंस से ज़्यादा किस प्रकार अत्यधिक उच्च संख्या में लिगेंडों से बंधित होकर स्थायी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करने में सफल होता है. ठीक है. तो as coordination of ligands is assumed through the hybrid orbital of the metal, Pauling was able to account for the stereochemistry which was related to hybridization. ठीक है ना. तो we know that a valence bond जो है it ascribes the octahedral structure to D2sp3 hybridization and square planar structure to DsP2 and tetrahedral structure to sp3. Various type of stereochemistries could be explained through the help of this valence bond theory. ठीक है. तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसकी उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उनके मैकेनिज्म को समझाने में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वह काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ना. क्योंकि लिगेंड का जो बंधन है हम जानते हैं कि मेटल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के माध्यम से माना जाता है. तो पॉलिंग जो है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री की व्याख्या करने में सफल रहे. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की दृष्टि से हमें कह सकते हैं कि जो है वी कैन एस्क्राइब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर टू D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. अष्टफल की संरचना जो है वह इनको दी जाती है ऑक्टाहेड्रल ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को. एंड स्क्वायर प्लेनर. ठीक है. तो जो वर्गाकार समतलीय है वह DsP2 को एक्सप्लेन करता है एंड टेट्राहेड्रल टू sp3. ठीक है. तो इस तरह की डिफरेंट ज्योमेट्रीज जो हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से समझा सकते हैं. ठीक है. तो नाउ अच्छा जो टॉबे है उनने तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो उनकी जो ऑर्बिटल्स की जो लेबिलिटी है, इनर्टनेस है ना, तो उनको बहुत अच्छे से समझा सके वो थ्रू एक तो यही कि जो है अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो, या हाइब्रिडाइजेशन में जो है इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्बिटल्स का इंक्लूजन हो, उसके आधार पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से उनका जो है इनर्टनेस, इन कॉम्प्लेक्सेस की इनर्टनेस और लेबाइल नेचर को समझाया जा सका. सो in the next lecture we will go through the limitations of this valence bond theory. ठीक है. See you there.
Goodbye.